आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है। इसका टाइटल है जिंदगी का सफर। जिंदगी का सफर। सफर हमारे अपने प्यारे दर्शन मुत्ता जी का। सफर उनके सिंगिंग पैशन का। सफर उस 3 साल के छोटे से बच्चे का who found his singing passion and never got a chance to follow it and finally started his singing passion at the age of 50 से आज के दर्शन जी का। Basically from automotive industry, and then he found his passion for singing, cooking and gardening, and he inspires us that it's never too late to follow your passion. It's if you really love something, you'll find a way to do it. Practice, practice, practice till you become the best. A passionate singer, a passionate singer who's self-taught, self-learned, and who sings from his heart and soul. So welcome Darshan ji. It's a pleasure to have you here, and we are really looking forward to hear your soulful voice. Okay, thank you, thank you. Yeah. So I will start this Zindagi ka Saffar. So we are very lucky, me and Baldev, that we were born in the family. My mom and dad, they were from Punjab, and he did get matriculation done, and he studied further and then was able to join what's called External Affairs of Ministry of External Affairs, New Delhi in 1946. And then we came to New Delhi to work in the Ministry of External Affairs. So we both were very lucky that we were born there in this family, and that gave us the opportunity to travel abroad. So in 90, I was about a year and a half or 2 years when first time Indian High Commissioner opened up in Nairobi. So this so that was our first posting in 1948 till 1952. So Indian High Commissioner opened up in Nairobi, and my dad got selected to accompany with the High Commissioner. And that's how our journey started. The first time from Delhi to Bombay, and from Bombay to Nairobi, Kenya. And it was in those days it was very interesting, but I don't remember too much about Nairobi city, but I was so little. But I remember some of the events still, that because of a lot of Indians, Punjabis and Gujaratis were there. They were was called in the business sector a lot, and that's why. And because of that, there was I don't know the name of the theater, but at least I guess weekends they used to show Hindi movies. And there was also a radio station which was in Hindi and Punjabi. And that's all I remember. And then that was one time I think we went. I still remember we went to see the Raj Kapoor's movie Awara. Yeah, and that song Awara Hoon, Asman Ka Tara Hoon. I somehow remembered that few lines. When I came home, I started singing that song. And at the time, parents got me a trumpet. And I used to sing, not try to imitate that song, Awara Hoon. And the music in the Awara Hoon is like
आवारा हूँ, आसमान का तारा हूँ, तोड़ियूं. So I used to do with my with in my singing turium turium and then my parents would laugh with me at that time, and that was very I still remember that for some reason. And then at one time like I was quite mischievous guy at the time, little boy, I mean. So this was a big house, and it was, had a center court was quite big. It was big enough that dad and other staff members could play badminton inside, indoors, in the courtyard. And at one time, these landlords, they were business people, and they were, I guess, dealing with some dairy products. And at one time, they had a big drum of milk sitting there, and I am trying to push that milk drum. So I couldn't push it. So it was very hard, and there were some spare tires sitting beside the drum. So I climbed on the spare tires and trying to get some leverage, and I managed to push the drum, and the whole milk spilled in the yard. It was about 250 or 300 liter milk. And then I was wondering who did it. Then I try to play innocent that I didn't do it. Those were the days. Yeah. विद्या, मैं एक बात बोलूं एक सेकंड के लिए? Yes, yes. जी, दर्शन जी, आप थोड़ा लैंग्वेज मिक्स कर दीजिए. Oh, okay, okay. जी, नो प्रॉब्लम. अदरवाइज इट्स ओके, बट आपको पता ही है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज को ऐसे कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो सबको समझ, आपकी जर्नी जो है वो और अच्छी से निकल के आ जाएगी हमारे सामने. Oh, yeah. जी, थैंक यू. कोशिश करते हैं. जी जी जी. So in 1952, so दिल्ली वापस आ गए. तो दिल्ली वापस आ गए तो so that would be what 6 years old, yeah. And then तो फिर कोटला मुबारकपुर, पता नहीं आपको किसी को याद है कि नहीं, दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट पुरानी जो होती थी, उसके पास हम रहने लगे और स्कूल भी जाने लगे. तो 55 में फिर हम शिफ्ट हो गए हरिनगर, तिलक नगर के पास, रजौरी गार्डन, तिलक नगर. सो वी है चॉइस थी कि रजौरी गार्डन जाएं कि तिलक नगर जाएं. सो according to our standard, so parents chose that हम हरिनगर में जाएंगे, because Rajouri Garden was a little bit more posh area. तो so घर बना लिया फिर हरिनगर में, और फिर वहां रहने लगे हरिनगर में. और प्राइवेट स्कूल था अपने गुरुद्वारे में, तो वहां गुरुद्वारे में फिर स्कूल की पढ़ाई शुरू की हमने. या तो फिर उसके बाद 3 साल हम हरिनगर में ही रहे. तब पिताजी की फिर पोस्टिंग आ गई हनोई की, 50 हनोई में, हनोई वियतनाम की. तो हनोई वियतनाम 58, तो हम तो हनोई फिर इस तरफ है, ईस्ट की तरफ. तो ना ईस्ट है, ईस्ट है, या ईस्ट है, या. तो फिर हम कलकत्ते गए, दिल्ली से कलकत्ते गए ट्रेन में. तो वहाँ होटल में रहे. तो वहाँ प्रॉब्लम हो गई. वो जो शिप था जिस पर जाना था,
हांगकांग को उसमें सोना पकड़ा गया स्मगलिंग करते हुए। तो कस्टम ने वो सीज कर दिया शिप। वो शिप सीज होने के लिए तो हमारा जो स्टे है वो लंबा हो गया। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 2-2.5 महीने हम होटल में ही पड़े रहे। हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। आप कितने साल के थे तब? तब 58 में हो गया 11 साल का। या तो पैसे खत्म हो गए तो फिर पिताजी ने चाचा जी को लेटर लिखा। तो उस समय तो फोन भी नहीं होते थे। लेटर लिखा कि भाई हमको पैसे चाहिए। जी। तो जब तक पैसे नहीं आते तो तब तक फिर मम्मी के कांटे बेच दिए होटल का बिल देने के लिए। So that was some experience. Yeah. तो दर्शन जी, आप तब तक गाना आपको कैसा लग रहा था कि आप गाना उसको उस फील्ड में आ चुके थे गाने के आपके बाद में आपने सोचा? नहीं, गाना मेरा ख्याल मेरा शुरू हुआ 63 में आकर जर्मनी में। ओ या जर्मनी में 63 में आए तो बस हनोई में सिर्फ 2 साल ही रुके थे हम, क्योंकि मम्मी का सर्जरी हुआ था। तो उसके लिए फिर और उसी दौरान फिर मैंने और पिताजी ने फिर मुझको थोड़ी सी कुकिंग सिखाई और फिर वहां से मेरा कुकिंग का सफर शुरू हो गया। क्या बात है, क्या या 17 years थे उस समय आप ना, 46 का या नहीं इतना 17 year या 17 या नहीं 17 नहीं 17 तो 63 में या तो, जर्मनी में जाके हुआ था। या 58 वियतनाम में तो मैं 11 साल का ही था अभी। या ओ या तो दर्शन जी, जब आप वियतनाम में थे तो उस वक्त हालात कैसे थे वहां के? वो हालात क्योंकि अभी जस्ट दे जस्ट फिनिश वो उनकी जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनियलिज्म जी। तो उससे वो फ्री हुए थे 56 में। तो तब इंटरनेशनल कमीशन सेटअप किया था। मेरा ख्याल यूएनओ ने किया होगा आई थिंक। तो पोलैंड, कनाडा एंड इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन। तो उसलिए तो अपनी इंडियन फोर्सेस थे, but not as fighters, but only just for peaceful international commission. So there were quite a few obstacles because there was no Indian grocery available in Hanoi at the time. So whatever we took a little bit from Hong Kong, like going to Hanoi, so that lasted about a month, and then Dad wrote to Ministry of External Affairs that if we could buy कुछ grocery खरीद सके international commission से, so that was sanctioned. तो वहां से permission हो गई, तो then we started getting some groceries from there. So मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों की फादर की ऐसी पोजीशन थी, आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था या दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था, तो आपकी मदर इसको कैसे ले रही थी? क्योंकि बेसिकली औरतें तो चाहती ना सेटल होना, बच्चे एक ही स्कूल में जाएं करें, तो ये बार बार जो चेंज था 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, तो वो कैसे आपकी मदर ने कैसे हैंडल किया? That was actually वो भी एक चैलेंज ही था एक किस्म का। या बट सो द थिंग इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब भी कोई भी बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, so you get foreign allowance on top of your salary. जी. So that was one reason
I guess everybody like that. Yeah. So they try to go along with it. Yeah. So let's go make some money. So because this is Malton Women Council, तो मैं तो ना उनके हिसाब से सोच रही ना कि उनको कैसा लग रहा होगा इधर जाना उधर जाना, बच्चे एक स्कूल में जाके एडजस्ट हो रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं. No, this is not strange. The same thing happened with me also. Oh. I changed 3 schools during my 10th class. Oh, yeah. See, there you go. Yeah. Too much problem. मेरे साथ भी, हमारे साथ भी यही था. तो मेरे पापा बैंक में काम करते थे, तो ऐसे ही 3 साल के बाद वो ट्रांसफर्स होती हैं. तो मतलब लगातार पहले तो होती रही थोड़ी देर, जब हम थोड़ी देर ऐसे जैसे स्कूलिंग में मतलब मिडिल स्कूल तक पहुंचे हम लोग, हम बड़े बच्चे जो तीनों, मैं छोटी तो बहुत छोटी है, तो हम लोग तब अमृतसर में थे. डैडी अमृतसर में पोस्टेड थे. तो मम्मी ने बोला अब यहाँ घर बना दो. अब मैंने यहाँ से, अब बच्चों की मैंने स्टडी जो है ना वो मैंने डिस्टर्ब नहीं करनी. तो हम लोग मतलब डैडी 3 साल के बाद कभी चले गए जम्मू, चले गए कभी पठानकोट, चले गए कभी बंगा चले गए, लेकिन मम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया हमारे लिए कि हमारी स्कूलिंग और फिर यूनिवर्सिटी तक हम लोग वहीं पढ़े. तो उसके बाद जब हमारा मतलब लग रहा था कि अब काफी पढ़ाई हो गई है, तो फिर जाके मम्मी ने चंडीगढ़ की पोस्टिंग डैडी के साथ. तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मदर्स के लिए बहुत ये एक चैलेंज होता है. राइट. या डिफिकल्ट होता है. या क्योंकि फिर 55 में जब घर बना लिया था तो फिर उसको फिर किराए पर देना पड़ता था. तो फिर कई बार जब वापस आ रहे हैं तो फिर टाइम पर खाली नहीं होता. फिर वो अनदर प्रॉब्लम. तो फिर 58 में तो फिर घर पर भी पढ़ाई हुई है. मोस्टली किताबें मंगवा लेते थे बस दिल्ली से, तो घर पे पढ़ाई कर लेते थे थोड़ी बहुत. तो वापस जब 1960 में वापस आए तो तिलक नगर स्कूल में हमने फिर वो एडमिशन लेकर तो पढ़ाई शुरू कर दी. तो दर्शन जी, सॉरी, एक क्वेश्चन और, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? क्योंकि उस एज में आप इतनी जगहों पे जा रहे थे, तो कहते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज पिक करता है. आई फॉरगॉट टू मेंशन के वो जो इन वियतनाम, वो उस समय हम इतने छोटे थे कि हमारा वो जो था ना अपना वियतनाम में, शी वाज अ यंग गर्ल, तो she knew how to cook Punjabi food from our previous predecessor. तो उसके साथ वो काम कर रही थी काफी देर से, तो उसने सीखा हुआ था. तो जब वो चले गए तो वो फिर हमारे साथ कुकिंग में हेल्प करने लग गई. तो वो बहुत अच्छा पंजाबी फूड बना लेती थी. तो उसके साथ हम, उसको पंजाबी तो आती नहीं थी, तो हमने वहां से वियतनामीज काफी सीख ली, और इतनी सीख ली कि we could just speak so fluently just like them. And it because it was what's called they write in Roman script, the Vietnamese, so we could read it, but we couldn't we could read it not maybe properly, but we could speak fluently. Even now? Not now anymore, no. No more practice, then you slowly forget it. Same with the German language. So same 1960 में जब दिल्ली वापस आए, तो उसके बाद फिर हम 63 में फिर जर्मनी आ गए. तो वो फिर same thing from Delhi to Bombay, and from Bombay through Suez Canal up to Naples, Italy, and then from there by train from Naples through Switzerland and came to Germany. All of the world. Yeah. And back then Germany was like
that German wall was there, so West and East German. So we were in West Germany. So at that time it wasn't the capital जो था वो Bonn था उस समय, not Berlin. So now it's Berlin nowadays. Now there is no more wall. Thank God for that. So the whole German is together as one. So वहाँ पे so हमारा वो शुरू हुआ schooling. First of all, जैसे यहाँ होती है ना अपना पता नहीं ब्रैम्पटन में होती है कि नहीं provision, विनिपेग में तो है. If you are PR and you want to learn English, and there are English classes provided by the government. Punjabi का हिंदी दे है. यहाँ पे भी है क्या? Okay, बस ठीक है. Yeah. पंजाबी हिंदी भी सिखाते हैं. Oh, okay. Oh, even that's even better. Oh. Yeah. So with that you can join. sure. हाई स्कूल में क्रेडिट है आपके इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो उर्दू, हिंदी, पंजाबी जो है वो ले लेते हैं, क्रेडिट भी मिल जाता है और लैंग्वेज भी आ जाती है. वो संडे सैटरडे क्लासेस लगती हैं. Right, weekends, yeah, or weekdays in the evenings, yeah. नहीं नरेंद्र जी, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना उनको तो साथ में भी उनको लेनी पड़ती है ना. हिंदी पंजाबी ना संडे और सैटरडे को भी लगती है. वो पंजाबी वो सीनियर्स के लिए, वो एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए लगती है. नहीं सीनियर नहीं, बच्चे जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना वो पढ़ते हैं. हाँ, मतलब बच्चे भी जाते हैं जो एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहते हैं पंजाबी. अब तो वर्चुअली चलती है उनकी. Oh, okay. So 63 में जो जर्मनी में प्रॉब्लम थी वो थी जर्मन लैंग्वेज की. तो जब तक जर्मन लैंग्वेज वो कहते नहीं तुमको थोड़ी बहुत आएगी तो तब तक हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे अप्रेंटिसशिप में. तो फिर शाम को स्कूल था एक फ्रॉम आई गेस जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ फ्री लेसन्स थे जर्मन सीखने के लिए. तो हमने वहां जाना शुरू कर दिया शाम को, रोज शाम को जाते थे, 1 घंटा था आई थिंक. और फिर वो टीवी वगैरह, न्यूज वगैरह या मूवीज वगैरह जर्मन लैंग्वेज में देखना शुरू किया. तो फिर उससे मैं थोड़ा बहुत सीख गए जर्मन. और फिर जब काम करना शुरू कर दिया एज अप्रेंटिसशिप, तो उसमें ये एक था कि हफ्ते में 1 दिन स्कूल जाना है, जस्ट टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज इन द गराज एंड थ्योरी नॉलेज स्कूल में जाकर अबाउट ऑटो मैकेनिक. सो दैट वाज बिग हेल्प इन वो सीखने के लिए जर्मन लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करना है. Because all the names of the parts of every part in the car, in the garage, so everything is in German. So you had to learn everything. So there was not any word of English in you could speak in the garage or in the school. Everything was totally German. So in the 3.5 years of German apprenticeship, so we became quite fluent. Because our parents stayed वो रहे हैं 63 से 66 तक. So then वो चले गए, and then we didn't finish our apprenticeship yet. But at that time, we were lucky that we were able to get scholarship from German government. So that was around like today, in today's currency, that would be like getting 400 euros per person. That was a lot of money then, in those days.
in 66. So almost for a year and a half, every month we get 400 and 400, 800 euros. Me and Baldev together. So that helped us a lot to save a lot of money that way. And that paid our fare to come to Winnipeg. And so पिताजी फिर चले गए वहां से, जर्मनी से खुरमशहर, ईरान. So if you are familiar with Khurramshahr, so it's near a seaport somewhere around the seashore, Khurramshahr. So वहां रहे वो 2 साल. So when फिर जब उनको बताया कि हम जा रहे हैं, हमारा वो खत्म हो गया वर्क परमिट इन जर्मनी, उनको जर्मनी में वो क्या कहते हैं, वर्क परमिट और स्टे परमिट दोनों चाहिए. तो 1 साल बाद तो वो खत्म हो गया. जब हमारा खत्म हो गया अप्रेंटिसशिप, तो 1 साल तो उन्होंने दे दिया, एक्सटेंड कर दिया. तो उसके बाद उन्होंने किया अब तुम्हारा वो खत्म हो गया अप्रेंटिसशिप, तो अब वापस जाओ और इंडिया जाके अपना काम करना शुरू करो. अप्रेंटिसशिप तो खत्म हो गई. तो फिर उनको कहा कि हम मास्टर्स करना चाहते हैं. तो वो कहते हैं वो तो हम अलाउ नहीं कर सकते, मास्टर्स तो मोर देन 5 years, तो वो नहीं हम अलाउ कर सकते, इतना स्टे करना लंबा. तो तब एम्बेसी में एक थे अपने कालो, तो कालो साहब उन्होंने बताया कि आप अगर आपको पास मैकेनिक का लाइसेंस है तो आप कनाडा क्यों नहीं जाते. कनाडा इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ इतने पंजाबी हैं वैंकूवर की तरफ. तो आई जस्ट न्यू द सिटी, बट वी डिडंट नो एनीबॉडी इन कनाडा एट ऑल. तो वो कहने लगा भी जाओ अप्लाई करो, जाओ वहाँ कोई ना कोई तुम्हारा हल निकल आएगा, जाओ. बस सेम थिंग हैपेंड. We applied for it and then we came to we got the immigration from there. The funny thing is in those days वहाँ हमको जब इंटरव्यू हुआ तो उसने पूछा भी तुम्हारे पास पैसे वगैरह हैं. तो हमने कहा भी हाँ पैसे तो हैं. तो हमारे पास पैसे हैं $5,000. वो कहता ओ अच्छा फिर तो काफी है. कहता नहीं तो हम तो तुमको पैसे देने के लिए भी तैयार थे. तो मैंने कहा फिर उस समय फिर इतनी चालाकी आती नहीं थी ना. भी कैसे पैसे मार लेने हैं कनाडा गवर्नमेंट से. अब आती है दर्शन जी. दर्शन जी, अभी तक जो आपका सफर कनाडा आने से पहले तक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री बहुत खूबसूरत लगी आपको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप दोबारा किसी जगह पे इनमें से किसी जगह को विजिट करना चाहें तो आप कहाँ जाएंगे? Yeah, that's a good question. Yeah, I think हम जाना चाहेंगे जर्मनी. Yeah. क्या खास बात है वहाँ? It's like it's a historic place. It's like वो बॉन से मेरा ख्याल 20 किलोमीटर था कोल्न. It's like same as like they call it Kowloon, and it is like Kowloon in Singapore, Hong Kong, Kowloon. So same, I guess, the same name, Kowloon, and that's a historic city. So and very interesting city. We didn't. We visited quite a bit, like on in the car and on a motorcycle. So we used to travel a lot with our friends on a bike on the weekends, like for just for doing some adventure and stuff like that. So that will be
the Germany. I would like to go once Germany and Bonn and see that city where we left off. I tried to Google map that factory where we did our apprenticeship. That has changed so much in design. So seems like they have remodeled the whole place. Yeah, Baldev's son, he tried to Google it when I was in Brampton, and he tried to Google it in Bonn. So I remember the name of the street and the number of the street where that building was. So he was able to locate that building, 444 Königswinter Strasse. So दर्शन जी, यहाँ तक आपका पैशन फॉर सिंगिंग कितना डेवलप हो चुका था? 63, then there was, because we stayed at home and Dad used to go to office, and after I think 1 year, that was the first time we had a radio set at home. Otherwise, all that time we stayed in Delhi, we were not allowed to have a radio set in the house. So strict about all the time pushing for study all the time. So, but at least we didn't study, because all the time we are never there. So we stay few years there, and then we move again, and then we go to school few years, then we move again, and then finally, then when we finished our apprenticeship, and then came to migrated to Winnipeg. So yeah, when we migrated to Winnipeg, that immigration officer in Germany, he said that, okay, so you don't know anybody, so then I will arrange that somebody will pick you up from the Winnipeg airport and take you to the hotel. So sure enough, he was there waiting for us, and he took us and took हमारा वो सामान लिया, सामान लेके हमको होटल तक लेके गया, वहाँ होटल में ठहराया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमको फिर लेने आ गया, फिर वहाँ लेके गया, वो क्या कहते हैं उसको, मैन पावर एंड इमिग्रेशन एंड मैन पावर फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो वहाँ फिर उन्होंने हेल्प की to find which garage they can send us to find a job. Excuse me, when were you married? In 1974. नरिंदर आंटी, अभी उसमें टाइम है, अभी उसमें टाइम है, वेट कीजिए, अभी अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता. जी सुरजीत, गाने भी सुनाओ ना भी. जी सुरजीत जी. हाँ जी दर्शन जी, मेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? या वो भी वैसे काफी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, लंबी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी हैगी आ. ओके, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Bonn ਗਏ, when we went to Bonn for the interview, and he asked, why did you write Ottawa in the application that you want to go to Ottawa जाना चाहते हो? तो मैंने कहा भी that's the only capital I know in Canada, that's Ottawa. So I just wrote Ottawa लिख दिया. भी हम तो और किसी शहर को तो मैं तो हम जानते भी नहीं है. तो वो कहता भाई तुम Ottawa ना जाओ. तो आई थिंक उसने कहा कि तुम ना विनिपेग जाओ, वहां पे आपके चांसेस अच्छे हैं जॉब मिलने के. तो मैंने कहा चलो ठीक है. फिर एक बार मैं कहा चलो विनिपेग चलते हैं, तो बाद में देखेंगे फिर वैंकूवर जाना कि टोरंटो जाना. तो वो तो बाद में पता लगा ना भी टोरंटो भी कोई शहर है कनाडा में.
अगर किसी को जानते हो ना वैंकूवर, तो हम फिर वैंकूवर ही लिख देते हैं। तो वैंकूवर का तो नाम सुना हुआ था हमने, जर्मनी में भी किसी ने उनके कालों साहब से। या तो वो फिर जॉब तो मिल गई विनीपेग में एज ए मैकेनिक, पर प्रॉब्लम बड़ी होगी सर्दियों में, ठंडी कार को कौन हाथ लगाए। फिर कार के नीचे जाओ तो कार ड्रिप करने लग जाए, स्नो सारी, कभी सिर पे पड़ रही है, उस समय तो मेरी पगड़ी होती थी, तो कभी पगड़ी पे पड़ रही है, कभी गर्दन पे जा रही है पानी, ठंडा पानी कपड़ों पर पड़ रहा है। ओह वाह। सो देन आई जस्ट गिव अप। फिर मैंने उसमें थोड़ी देर, फिर मैंने वो मैकेनिक का काम छोड़ दिया। बट आई है इन द मीन टाइम आई वो जो था इंटरेस्ट इसमें काफी हो गया मेरा, गानों में और मूवीज में। तब मूवी थिएटर इधर विनीपेग में कोई भी नहीं था, तो जो थे इंडिया एसोसिएशन, वो इंडियन मूवी लगाती थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। तो दैट वाज कितना हो गया, जैसे ब्रैम्पटन से डाउनटाउन जाना हो इतनी दूर मूवी देखने के लिए। तो बिकॉज इट वाज ऑन द वीकेंड्स, सो हम चले जाते थे, दोनों भाई और एक और फ्रेंड था हमारा। तो फिर आस्ते आस्ते फिर इधर एक शॉप थी विनीपेग में, वहां हिंदी रिकॉर्ड्स आने लग गए। ओ फिर मुझे तो जो खुशी हुई ना, वो भी हिंदी रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं इस दुकान पे। तो हम तो गए दोनों जने, तो फिर रिकॉर्ड प्लेयर भी ले लिया एक, रिकॉर्ड प्लेयर लिया, और फिर हिंदी हिंदी गाने बजने लगे रोज। आपको याद है पहला गाना उस पे क्या बजा था जब आप घर लेके आए? क्योंकि हम सबको याद रहता है आमतौर पे। मेरा भी यही क्वेश्चन था। या? ओ वो था अभी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र आंटी इंतजार करें कि कब आप गाना गाना शुरू करेंगे। इंतजार करें ताई जी कब मिली आपको। शुरुआती गाना तो, पहला वाला गाना तो अभी आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए, चाहे 2 लाइनें। तो गहरी सोच में है। मैं भी बड़ी इंतजार में हूँ कि कब गाएं दर्शन जी। नहीं, ये ईयर कौन सा था वो, मैं बताती हूँ फिर गाने। कौन से ईयर की बात? दर्शन जी आप आवारा 68 आवारा हूँ 68 में आए थे ना विनीपेग। तो तब थे नाना करते पैर तो। नहीं, सबसे पहला गाना तो उनका था आवारा हूँ। नहीं, जब टीवी वो लाए, रेडियो लाए ना, तब वहाँ पहला गाना रेडियो पर। नहीं, उनका पहला गाना तो जो उन्होंने गाया है ना, वो आवारा हूँ है। अच्छा, वो तो बहुत 50s का था। हाँ, जो उन्होंने गाया था एक्चुअली, तो वही फर्स्ट सॉन्ग था उनका। सिंगिंग का पैशन तो वहां से शुरू हुआ ना, कि मेरे को गाना है। जी दर्शन जी, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए अपना सफरनामा। राइट, या तो वो फिर आस्ते आस्ते कलेक्शन बढ़ती चली गई जी। फिर उसके बाद फिर उस समय जो हम तकरीबन होटल में रहे 1 महीना, 1 महीना रहे होटल में। एंड तो फिर जो हमारे साथ वो मैकेनिक था, वो कह रहा कि तुम इतना होटल में रह रहे हो, इतना खर्चा हो रहा है तुम्हारा, तो तुम कोई रेंट पे क्यों नहीं लेते।
कोई कमरे वगैरह? तो मुझे तो कोई मालूम नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा रेंट पे घर। वो कहता चलो मेरे साथ चलो, वो लेके गया हमको। तो इमेजिन कि उस समय हमको 3 कमरे का फ्लैट फर्निश्ड $15 पर मंथ, फर्निश्ड किचन, फर्निश्ड बेडरूम, लिविंग रूम, $15 per month in 68. That was amazing. And then we bought a Volkswagen car, Wow. a used one. So that was for, I think, $200 or something. And then we fixed it ourselves a little bit. Mechanical work was needed. So we fixed it in the garage after working hours. So they let us work ourselves. So we just buy the parts and fix it. So Darshan ji, Yeah. the reason to buy Volkswagen because you were from Germany and it's a German car? It was German car. Yeah, वो बताया नहीं कि जो अप्रेंटिसशिप थी वही हमने ट्राई की थी उसमें मर्सिडीज में। अच्छा, अप्रेंटिस वो वहाँ जगह नहीं मिली हमको, ओके। तो फिर हमको जगह मिली फोक्सवैगन में अप्रेंटिसशिप की। तो फिर पिताजी कहने लगे चलो अगर फोक्सवैगन में मिलती है तो चलो यही शुरू कर लो, चलो काम कुछ तो काम शुरू करोगे ना, काम बाद में जब सीख जाओगे फिर मर्सिडीज में देख लेना। या बहुत अच्छी कार है फॉक्सी, हम मेरी फैमिली में बहुत रही है, वेरी सॉलिड। हाँ, उसका कहते हैं ना कि एक खातून ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई, उसने उसका बोनेट खोला तो उसने कहा ओ माय गॉड इसका तो इंजन ही नहीं है। दूसरी कहते फिक्र ना करो मेरे पास एक स्पेयर पीछे पड़ा हुआ है। yeah, that's it. Yeah, right, yeah. It's a very solid car. Yeah. मैंने सुना है कि टैंक के स्टाइल पे उन्होंने बनाई थी ताकि सॉलिड रहे। उन दिनों पे ये सारा कुछ जब चल रहा था जंग और सब कुछ, right. तो उन्होंने इस स्टाइल की बनाई थी ये, yeah, ताकि बुलेट्स इसके आर पार स्ट्रेट ना लगे, वो शेप ऐसी बनाई थी। आई डोंट नो, सुना है मैंने लोगों से। Yeah, it was more streamlined. जी हाँ, aerodynamic kind of thing. Exactly. Yeah. So that's why we उसमें जर्मन Volkswagen में हमारा वो apprenticeship शुरू हुआ, and same apprenticeship we were able to get a job in Winnipeg garage. It was a Volkswagen dealership. They used to sell new cars, used cars, and repair and service. So, and that time in Germany, the thing was, wo jo the garage owners in Germany, they will give you a toolbox to work with the tools. But and then when you finish or when you quit your job, and so then you will hand over to them. And if anything is missing, you replace it, and then it's done. But when we came to Germany, and then and the first we went to the garage, and then he said, "You guys have your own tools?" I said, "No, we just came here 2 days ago." and in Germany, the garage provides the toolbox. They say, "Yeah, but this is Canada. We don't provide any tools. So you have to buy your own tools." That was crazy. So he said, the what's called the foreman, he was very helpful. He was from Czechoslovakia. So he said, "Okay, what we will do, I will give you my toolbox. So you can use my toolbox, or say, काम शुरू करो." तो तब तक slowly you start buying your own tools and toolbox, and then you give me back my toolbox. That was very helpful of that supervisor, foreman.
So that was दर्शन जी गाना कब आएगा? वेट Yeah, करें तो- दर्शन जी that दरमियान में एक एक गाना रखे ना, ज्यादा मजा आएगा। yeah, I think so too. Yeah. तड़का तो लगा दीजिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए था, नैरोबी से निकले गाना, एक अच्छा गाना। जी, वियतनाम से निकले गाना, इंडिया से निकले गाना, जर्मनी से निकले गाना। Oh wow. अच्छा। गुड आइडिया उस्मा। और हर जगह से निकलते हुए यही गए, आवारा हूँ। हर जगह से निकलेंगे तो आवारा ही है। बहुत देर के बाद बताया, थोड़ा पहले और कह देते। नहीं ओ, मोहिनी जी, सोना नहीं आपने। नहीं, मोहिनी आंटी, हम इनकी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, जब ये बता रहे हैं तो सारा वो जगह हमारे सामने आती जा रही है, उस वक्त के पॉलिटिकल हालात, दुनिया के हालात क्या थे, वो सारा कुछ देखिए ना आपकी क्या, उनकी जर्नी में क्या क्या। वैसे दर्शन जी, वैसे मैं छोटी सी बात है कि आप तो इतनी, आपको इतनी अच्छी जर्नी आपकी याद है, आप तो पूरा सच्ची में एक सफरनामा लिख सकते हैं। तो आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए, जरूर लिखिए। कब वो मूवी बना लें। नहीं मोहिनी आंटी, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आप सबसे ये कहती हूँ, आप लोगों के इतने एनरिच एक्सपीरियंसेस हैं, लिखिए। और दर्शन जी, आप तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, यू आर सो एक्सप्रेसिव, आप उस तरह से अपनी जर्नी लिखें। आप सब लोग अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। yes. हम हनिया ने, याद है जब हनिया ने प्रोग्राम किया था तो उसने ये बात की थी, अपनी ट्रैवलिंग का आप लिखें। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को लिखना चाहिए, कुछ ऐसा लेके आते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट। या बलदेव ने लिखा है थोड़ा बहुत, पर वो he has his own I think book about I think poetry or something. जी जी, yeah, so I'll ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yeah, I think yeah, I'll when I come to Brampton, I'll talk to Baldev and he can help me. He can नहीं, you can। अपना सफरनामा नहीं, वो साडा दोनों का इकट्ठा ही है वैसे। कमाइंड है ना उनका। हाँ, इकट्ठा ही है, दोनों को कमाइंड है, इसलिए वो बोल जे कोई, या जे कोई गल रह भी गई होवे तो फिर 800 यूरो इकट्ठे। हरीश अंकल आज है, वरना तो सारी लेडीज हैं आज। वैसे दर्शन जी, जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे ना, जब आपका हमसफर आपके साथ मिला था, तो मेरे को लगता है कि आपको उनको साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हमारे साथ, अगर वो अवेलेबल हो तो। वो काम पे होंगे, आएगी असल से। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आज का गाना अपना राजेश खन्ना जी का किशोर दा आज का पहला गाना आया था। आज का पहला गाना, हाँ, जिंदगी का सफर ही सुनाएंगे ना पहला गाना। हाँ सी, इन्होंने बुझ लिया वैसे। इन्होंने सारा पता है, इन्होंने बुझ लिया वैसे। या ओके। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने
हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई, फिजा खा गई। है परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। रोंगटे आ गए सीरियसली। कितना विद्या? बहुत बहुत सुंदर। आई नो इट्स स्टिल आई थिंक ये गाने ने पूरा अपने जिंदगी का सफर बयां कर दिया और मेरे तो रोंगटे आ गए पूरे। थैंक यू, थैंक यू। बड़ा अच्छा गाया जी, बहुत अच्छा। नहीं इसीलिए मैं उदन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਾਜ਼ से ही बिल्कुल बड़ा अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਦਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। मार्टिन वुमन ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 11th 19th। oh yeah, there we go। आई होप कि आप सबने रजिस्टर करा लिए हैं। या ओ या अच्छे बच्चों की तरह हाथ खड़ा करके बताएं किस किसने करा लिए। मैंने नहीं कराया, कल करूंगी। कल नहीं नरेंद्र आंटी, इसके बाद अभी ठीक आज ही कर लूंगी। अभी कर अभी फिर सारा ऊपर से भी खोलना ठीक है। और ये जो सारे बैठे हुए ना पर्दे के उस पार, वो भी सब रजिस्टर कराएं खुद को। जमीला बहन भी। आप भी बहन ही बोलते हो उनको। बहन है मेरी। नरेंद्र जी आप समझिए, अगर वो बहन बोलती हैं तो आप ये सोचिए कि वो जो है जमीला जी जवान होके उनके साथ की हो जाती है। नहीं तो वैसे है जवान और शी इज वेरी नाइस, बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो तो बहुत प्रीटी है, बहुत प्रीटी है, बहुत स्वीट है जमीला बहन, आप बहुत स्वीट है, उज़मा से भी डबल। हाय हाय। मैं तो जितनी बार देखती हूँ बड़ी खुशी होती है। जी दर्शन जी, एक और गाना आ गया। ਹੁਣ आवारा सुना दो। हमारा तो रेडी नहीं हैगा।
क्या गर्दिश में हो घूम ਤੇ ਆਹ ਦੂਜਾ ਹੱਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। तुम जो मिल गए हो, वो ठीक है। गए हो नहीं अभी नहीं, वो 74 के आसपास, वो जब वो 74 मिलेंगी, के आसपास जब आप वहां पहुंचेंगे। जब वो मिलेंगी फिर आप ये गाइएगा ना, तुम जो मिल गए हो। हाँ। ओके 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 ओके। तो आप 64 68 तो हो गया। ओके। तब आप हम बताएंगे ताई जी कैसे मिली। Yeah, I worked as a mechanic, and then I went. Then I changed my profession. I went into the garment industry very good. As a cutter and spreader. So I worked there for only 6 months, and then I started working as a cook in a restaurant. Very good. Yeah, it was a Gill's restaurant, and he was the owner of the restaurant, and I met him back in '68, and then he bought a restaurant in 1970. It was and he named it Singapore Restaurant, and then I used to make Indian food in the restaurant, and I worked there I think about a year, and then because I was a honorary cook for a whole year. So then फिर मैं चला गया Thompson to find a better job, and the better job was underground in the mine, International Nickel Company. what a job, totally different, strange job. So first time when you go underground, so it's so scary. You are underground and you are walking on the straight path, and there is no lights. Only light is on your helmet, the flashlight, and flashlight is attached on has a clip on the hard hat, and then it has a wire with a small battery pack, and battery pack is enough to last you for 8 hours. Wow. And yeah, after 8 hours, जब आप फिर आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, तो फिर आप ऊपर आके फिर अपना बैटरी चार्ज पे लगा दो or change your clothes, take a shower, and then go back home. So that was 8-hour shift, and the lunch was included in 8-hour shift. But at the time, the good part was that I made good money in the nickel company, and I saved some money. And then one day, when was it? I think, yeah, it was 73. So I went there in 72, and it was 73, and then there कुछ फ्रेंड्स मिले जो वो इंडिया से रिसेंटली आए थे, तो उनके पास कुछ गाने थे, टेप रिकॉर्डर. उन दिनों टेप रिकॉर्डर बहुत चलता था, very famous, like a reel to reel, that one, not cassette. Cassette came later. So tape to tape, that time there was and then there were all kinds of songs, Rajesh Khanna songs, and then one time one friend had somehow he was able to get Pakisa songs. So I heard this song, Pakisa song. It was Mausam Hai Ashkana, Veena Kumari ka. Oh boy, that changed my life. Wow, such a composition. Wow. वो गाना तो होना चाहिए ना. हाँ, पर वो रेडी नहीं है अब.
I know. Because my system is down, so it's not working, cooperating today. So, and another, okay, maybe some other time we will discuss about it. के screen share कैसे करते हैं? Like on one screen, how you open up two links, one YouTube and one carry on with your Zoom link. So I have to find out how to do that. So वो गाना, so I fell in love with that song so much. I said, well, it's time to go back home now. So in November 73, then I quit the job. So I had enough money. So I said, well, okay, let's go. So then I wrote to Dad that I'm coming. So he said, okay, you can come. Baldev is here already. So Baldev was there in Delhi already. So he went there before, year or 2 years before me. So he was living with the parents in Delhi, in the Delhi house. So then I went in 73. It was November 73. Wow. And then we started putting ad in the paper. So nothing worked out. So then my mom said, why don't you go to Ludhiana, to the older Masi's house? She will find someone. And she did. And till now, I thank her for that I found the right one. I wanted actually like someone who is ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ, that who understands how to keep the family together. That's the main thing nowadays. It's very important. So nowadays, the joint family is a thing of the past. Yeah, those days were with our parent time, not anymore. Nowadays, आजकल तो बस शादी हुई, so hardly 1 month, and then they are on their own. Okay. God inspired. Okay. Oh yeah. So how did I? आप मिल लिए तो अब वो गाना अब वो गाना तो 2 लाइनें सुना दीजिए ना। ताई जी मिल गई तो अब तो गाना तो बनता है। तुम जो मिल गए हो। अच्छा, अच्छा वो वाला, हाँ, okay. Oh, all right. I'll try. I haven't tried it yet. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भूले हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भूले हुए राही को कारवां मिल गया।
बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से आसमां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम भी हो खोए खोए। ओके दैट्स वो लास्ट वाला है, या उसके बीच में जो है वो मेरे ख्याल मूवी में नहीं है। अच्छा लास्ट वाला है ये। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था, दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया, तुम मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। वाह वाह वाह, फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू थैंक यू। कई बार ये प्रैक्टिस तो बिना गाओ ना फिर थोड़ा जिहा ऑफ हो जाता सुर तो, फिर सुर फिर थोड़े जिहे ऑफ हो जाते हैं, एंड वंस यू कैच योर ओन मिस्टेक्स, nothing better than that. है ना विद्या? हो रहे okay, where were we? हम शादी Yeah. पे। Oh yeah. Okay. So then she said, I have one girl. एक लड़की है मेरे दिमाग में, उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई है, तो उसको 2 साल हो गए शादी हुई को, तो छोटी बहन अभी सिंगल होनी चाहिए। तो मैं उस फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ, तो मैं उधर उनके पास जाके आती हूँ और पता करती हूँ। तो नहीं, मास्टर जी गए, या मास्टर जी गए पहले, वो पता करके आए। तो पता करके आए तो फिर वो कह रहे ठीक है भाई, अभी उसकी उस छोटी बहन की शादी नहीं हुई है, तो सो वी विल कंसिडर। तो मास्टर जी
बापू जी को बता के आए कि दर्शन वहां से आया हुआ है कनाडा से, तो वो मासी जी के साथ किसी दिन आ जाएगा। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाना। तो उन्होंने ये बात सीक्रेट रखी, किसी को बताया नहीं। तो क्योंकि वो था मुल्लांपुर, किसी को पता हो, मुल्लांपुर के पास साथ है कैलपुर बड़ेचे। हाँ जी हाँ जी या हाँ जी मैं हाँ जानती हूँ। हाँ, बस वहां थे मेरे ससुराल। तो वहां गए, तो so I said, well, everything is okay. So they said, okay, fine. So then शाम को घर वापस आ गए। तो तब तो फोन था उनके पास, मौसड़ जी के पास, क्योंकि उनका अपना कारखाना था लुधियाने में। उन्होंने फोन किया पिताजी को। तो 2 दिन बाद मम्मी डैडी भी आ गए। तो वो कह रहे थे चलो अब लड़की को सगन डाल के आए। सगन की रस्म शुरू हो गई, आ गए। तो वो मम्मी डैडी जाके मासी मासड़ के साथ जाके शगन डाल के आ गए और डेट फिक्स कर दी। 2 वीक बाद फिक्स कर दी जी वेडिंग। वो कह रहे इतनी जल्दी कैसे होगा? बस होगा, बारात छोटी होगी, दैट्स ऑल। तो कितने होंगे? 35-40 होंगे, दैट्स इट। तो जब बारात पहुंची तो पूरे गिनती के 40। तो बापूजी कहने लगे भाई आप तो 40 पूरे ही लाए हो। तो मैंने तो कहा अभी 60-70 हो जाएंगे। क्योंकि आमतौर पे बारात ज्यादा गिनती हो ही जाती है, करते करते इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको वो ना रूठ जाए। तो करते करते 60-70 हो जाते हैं। नहीं, पिताजी कहते नहीं, हम उनमें से नहीं है। सो बट वी डिसाइड। तो फिर शादी हो गई। पट ब्याह हुआ था। हाँ बस बिल्कुल, पटमंगनी पट ब्याह। या दैट्स द वन। या तो फिर उसके बाद फिर जाना था, एम्बेसी करना था वो अप्लाई। तो एंड देन अप्लाई हो गया। अप्लाई के बाद उन्होंने मेडिकल दिया। तो मेडिकल उन दिनों वहां होता था मुल्लांपुर में, पंजाब में एक ही जगह होती थी मुल्लांपुर। तो वहां मेडिकल के लिए चले गए। तो मेडिकल के बाद फिर हम चले गए, मेडिकल हो गया। तो दैट टुक अस अबाउट मे बी 2-3 घंटे लगे होंगे मेडिकल के फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। वो जो आई टेस्ट वगैरह करते हैं और थोड़ा बहुत आई गेस व्हाटएवर एल्स दे डू, क्वेश्चन आंसर्स। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम चले गए जहां उनकी बड़ी बहन रहती है ना, नाहन सुना है? नाहन नॉर्थ, नैनीताल के पास। एक तो पौंटा साहब हिमाचल में है ना? हाँ हिमाचल में है। या पौंटा साहब तो पहला होगा जी। हाँ बस वही। या ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ, खूब हंसी मजाक होया सालियां नाल। ते फिर दिल्ली आ गए। उतों बाद दिल्ली आके ते मेरी फिर सीगी फ्लाइट विनीपेग दी वापस। ते मैं फिर
मेरा ख्याल अपने 27-28 मार्च ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਪਸ ਤੇ so lucky like today is the 9th of April and I started my job in the foundry back then on 9th of April. No, today is 9th of March and I started in 9th of April 1974. My job in the foundry. Foundry Nahan? No, in Winnipeg. Okay. Yeah. So it was 74 after the wedding. Then I came back and then started a job. And then I worked as in the foundry. I was thinking of maybe I'll just work maybe 6 months or 1 year, and then maybe I'll find some different job. And that opportunity never happened. वो तो फिर मैंने बस फिर आस्ते आस्ते फिर 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गए, फिर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, और फिर इतने सालों के बाद फिर वो कोई रिस्क नहीं लेता फिर जॉब छोड़ने का. फिर सीनियरिटी हो जाती है, then your rate is better, and then you know your job, and then you have friends at work. So then kept on working and working and working. And at the time we made good money, and a lot of overtime was available at the same time. Even though foundry का काम जो है वो गंदा काम है, it's a very dirty job, like a lot of dust and smoke. And back then when I started in 74, there were no masks, there were no earplugs, there was no hard hat. So only thing was there was just safety shoes. And then one time one of the worker got hurt on the head, and then compensation stepped in and he said everybody should wear hard hats in the foundry. And then I had to take off my turban and wear the hard hat. Yeah. And then came masks, earplugs, and safety glasses and masks. That came all way after. कई workers जो retire हुए in I started in 74. Some of them retired after 1 year, and some of them retired after a couple of years, and they hardly survived 6 months. Their health was in such a bad shape, like that. So, unka lungs were so much blocked with the silica dust and dust from not using the mask, dust mask. So, and they got lung cancer, and after 6 months of retire, they died. That was so awesome. I was so shocked. So I kept on working for 35 years in the foundry, and then finally in 2008 I retired. And when I retired in 2008, that gave me more time to work at my singing, and more spare time to work around the house, repairs and fix, looking after the house, painting, fence, repairs, helping neighbors. There are few वो जो हैं seniors, single parents, उनको help की जरूरत होती है कई बार. So they just phone me and they need help, and then I'll just go and help them out. मेरा एक सवाल है ये रिंटू जी. यस नहीं, आप पूछिए. मैंने कहा आप पूछना. आप कह रहे थे आपकी जॉब में कि बहुत सारी मुश्किलें थी, लोग 6 मंथ भी नहीं कर पाए. Yeah.
you like devoted 35 years in that. So how was that journey की because जैसे आप कह रहे थे it sounds tough, right? And at that time इतने ज़्यादा protective measures नहीं होते थे. तो आपने कैसे deal मेरा किया? ख्याल है at least I think it started after 5 years of service. Then the new actually in 74 नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था फाउंड्री को. तो slowly they were doing and looking after the what's called safety measures in the foundry, but they were taking their time. So as long as injuries were happening, and then with the help of the compensation board, so they were implementing more and more safety rules and safety, providing more safety equipment at the same time. And Darshan ji, not many people know what foundry means. तो आप बताएंगे? Foundry ये जो क्या कहते हैं, लोहे का सामान बनता है. लोहे को गर्म करके, लोहे को ढाल के, उसको गर्म करके, वो जब गर्म हो जाता पूरे टेम्परेचर पर तो बिल्कुल पतला पानी जैसा बन जाता है. या तो वो रेत के सांचे बनाते हैं, रेत का मोल्ड बनाते हैं. उसमें जिस शेप का भी कोई पार्ट बनाना है उस शेप का उसमें आकार बनाकर सैंड में, तो उसके 2 हिस्से होते हैं मोल्ड के. तो उसको फिर उसमें फिर वो गरम लोहा डालते हैं. तो जब वो ठंडा हो जाता है तो देन इट बिकम्स हार्ड एंड देन इट टेक्स द, उसका आकार वो बन जाता है जो उसका वो आकार बनाया था पहले. कास्टिंग कर दिया. हाँ या तो वो फिर उसके बाद फिर उसको ग्राइंडिंग वगैरह करके मशीन करके तो फिर उसको वो पार्ट यूजेबल हो जाता है. तो मोस्टली हम जो फोल्ड ट्रैक्टर है आजकल फोल्ड है तो उसके पार्ट्स वगैरह बनाते थे ज्यादा, उसके एक्सल, उसके हब्स, उसके डिफरेंशियल वो पार्ट, और जो दूसरे स्टेप्स वगैरह थे, और जो फ्रंट पे कई बार एक्स्ट्रा वेट चाहिए उन ट्रैक्टर के, वो बनाते थे. वाह. मैं एक्चुअली बैक होम में ऑडिटिंग फील्ड में थी, तो मैंने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को विजिट किया था. तो उनका जो फर्नेस वगैरह का उनका टेम्परेचर एक्सट्रीम, किसी का तो 400 डिग्री सेल्सियस तक उनका होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द टेम्परेचर. सो हैट्स ऑफ टू यू. Yeah, no, the foundry temperature used to go up to 27-2800. Wow. Yeah. Wow. Yeah. To reach that proper temperature. अभी वो yeah. Right. मैंने like 400 डिग्री का ही देखा था, and like काफी दूर थी. 400. Yeah. It's वो मेटल को इतना हीट करे कि वो पानी बन जाए, and it's literally red in color. Right. Exactly. Same. And then उसके बाद वो जो भी आप मोल्ड में डालो वो फॉर्म ले लेता है, वो शेप ले लेता है. तो बिल्कुल. That's it. Yeah. That's it. Yeah. Same thing. Yeah. So then slowly I started as a grinder. So उसके बाद फिर grinders के बाद फिर slowly प्रमोशन मिलती गई, करते गए, अपग्रेड होता गया. तो एज अ सीनियरिटी बढ़ती गई. तो देन फाइनली देन एट द एंड I became as a machine operator. So that I stayed as a machine operator for more than 15 years. And then I retired as a machine operator. That's it. Yeah. What a journey. What a journey. गाना याद आ रहा है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल में बैकग्राउंड है, तो किशोर कुमार का चलती के नाम गाड़ी में का गाना है, वो एक लड़की भीगी भागी सी. तो सडनली याद आ गया. राइट. का कार और मधुबाला आती है, तो कोई आपकी स्टोरी है, आप यहाँ पे कार रिपेयर कर रहे हैं, बारिश हो रही है, ताई जी भीगी भागी सी. विद्या 2 लाइनें सुना दो. एक लड़की भीगी भागी सी
सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। लाती हुई बलकाती हुई, नो 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 हाथ में। मिली अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जबरदस्त जबरदस्त। जी दर्शन जी, Nice. गाना सुना रहे हैं। गाना कितना टाइम हैगा? किसी होर ने मोनी जी ने गाना नहीं सुनाना आज? आज तो आपकी शाम है, आपके नाम है। आज तो हम आपके ऊपर लट्टू हो गए हैं दर्शन जी। 6 बज गए मैं क्या? ओके, ये टाइम हैगा तो फिर बड़ा मजा आ रहा है। मोहिनी दीदी ना अपने प्यार से तड़का मार ही देती है। ओ यार। डेजर्ट कोई भी बना दे, ऊपर चेरी और वो ऐसे अपने बादाम काजू डाल के उसको और ब्यूटीफुल बना देती है। देख लो, ओके। मजा आ रहा है सुनने का कहानियां, इतनी मजेदार कहानियां। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि कैसे इनको याद है। मेरे को तो ये सारी कहानियां याद ही नहीं अपनी। इन्हें ओह, जरूर अच्छा। लिखनी चाहिए, रिकॉर्ड करें, या लिखिए, करें। या अमृत ने कई बार कहा, डैडी व्हाई डोंट यू राइट योर लाइफ स्टोरी इन फॉर्म ऑफ बुक। आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप सुना रहे थे, आप इसकी ऑडियो बुक बना लीजिए। ऑडियो में छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसको फिर उसको कंपाइल कर लीजिए, फिर उसका वो भी अच्छी बन जाएगी। या मिट्टी दा बाबा सुने होया? सुने हो यार जी, जगजीत सिंह ने गाया। हाँ जी, हाँ जी। गाओ गाओ गाओ। अच्छा, ओके, ठीक है। मोनी जी ने भी काफी वैसे म्यूजिक च इंटरेस्ट हैगा। मोहिनी पुराने गाने पुराने नहीं, गाने बहुत ज्यादा। तकरीबन सारे ही याद है, वोकैबुलरी है इन्हां नूं, इंडेक्स पूरा हैगा इन्हां नूं गाणियां दा। मोहिनी दीदी तो म्यूजिकल मोहिनी दीदी है। जैसे मिस मिसेस सब कुछ लगता है ना, मोहिनी दीदी का इनिशियल में म्यूजिकल मोहिनी, मन मोहिनी दीदी। हाय 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 हाय। मेलोडियस क्वीन। हाँ, ओके ओके, चलो अब तारीफें तो हम अपने MWC से सुन सकते हैं अपनी, बस उधर आसमान पे बिठा देते हैं। या फिर वहीं रहने देते हैं। वहीं रह देते हैं। थैंक यू मैं थैंक यही यू। कहने वाली थी, उधर ही रखते। क्योंकि जिसकी जो जगह वहीं 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 रहेंगे जी, हम वहीं रहेंगे। आप सुरों के आसमान पे हैं। क्या बात है। तो आज दर्शन जी भी अब हमें सुनाते हैं। हाँ जी, मिट्टी दा बाबा सुनाओ। ओके, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ चित्रा जी ने अपने गाना गाया सीगा। फोक में भी गाते हैं। हाँ जी, इसको फोक में भी गाते हैं। हाँ, फिल्म अच्छा अच्छा, ओके। तो मुझे तो फिर वो मूवी वाला ही याद है, जहाँ उसकी कंपोजिशन जैसी भी थी, जगजीत जी ने बनाई थी। किथे तालावां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही, किथे तालावां शैतूत वे तेनू समझ ना आई। है मोनी जी? हाँ जी, बोलो बोलो। तुसी ढोलकी बजा लेने? बजांदी पई आ। अच्छा। मिट्टी दा बावा मैं बनानिया वे सका,
पानिया बेते देनिया खेसी नारो मिट्टी दिया पावे आवे तेरा प्यो परदेस किते तलावा टालियां वे पता वालियां वे मेरा पतला माही किथे तलावा शैतूत वे तेनू समझ ना आई सीता बावा क्यों नहीं मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा मिट्टी दा बावा नहीं हो बोलदा जे नहीं हो चलदा वे नहीं हो देंदा ए हुंगारा नारो मिट्टी दिया बावे आवे तेरा प्यो जारा किथे तालावा टालियां वे पता वालियां वे मेरा पतला माही किथे तालावा शैतूत वे तेनू समझ समझना मिट्टी दा बावा Okay, last one. मेरे जिया लख गोरियां वेतनी डोरियां वे गोदी बाल हिंडोले हस हस देंदियां लोरियां वे मेरे लड़न सपोले किथे तलावा टालियां वे पता वालियां वे मेरा पतला माही किथे तलावा शैतूत वे मैनू समझ ना आई किथे तलावा टालियां वे पता वालियां वे मेरा पतला माही थैंक यू जी मिट्टी दा बावा नी बोलदा क्यों नहीं Mutta ji, are you okay? हाँ जी this is just because I get some irritation in the throat. That's why I forgot to take my cough syrup before. I remembered I was supposed to take cough syrup, and then I just forgot. Okay ji. Every time okay, Changa Narinder ji. Okay ji. Every time I take cough syrup, and then that helps me a lot. Soothes up my throat a little bit. Right. Very nice, wonderful program. Okay, केड़ा thank you. कफ सिरप पींदे हो जी Cough syrup है Benylin. ओह अच्छा Yeah, Benylin वाला. नाइस गले के लिए अच्छा है. Yeah. So then you can continue for a long time singing in the IWD. सारा दिन भाਵੇਂ फिर गीत संगीत चलता रहे फिर. गाने गाओ हाँ. So इसमें भी हमने लिंक शेयर किया है, तो आप लोग प्लीज वो रजिस्टर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया. हरीश अंकल आपने नहीं किया ना अभी तक रजिस्टर? अच्छे बच्चों की तरह क्लिक कीजिए लिंक को, उसमें रजिस्टर कीजिए. अगर नहीं समझ आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो गुलनाज विल हेल्प. बाकी सब ने मेरे ख्याल में कर दिया है इधर जितने बैठे हुए. म्यूट करके बोलेंगे आप.
ये कह रहा था कि ये लिंक मिलेगा कहाँ से ना, आई कुड नॉट फाइंड एनी लिंक हियर। मैंने माय मोबाइल फोन ये इसमें है। मैंने व्हाट्सएप पे आज ऑल इज वेल की वेबसाइट पे ऑल इज वेल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है। ओके देन आई विल फाइंड फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप या जी, और यहाँ भी परविंदर ने भी शेयर किया है। ओके नहीं तो गुलनाज को बोलो ईमेल भेज दे, वो वहां पर क्लिक कर हरीश दो। अंकल मैंने आपको भेजा है, आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, चेक ओके करें। मैंने शायद नहीं देखा होगा ना इतना। जी, तो इस दफा बड़ा हमने भरा होता है ना जी, तो इस दफा हमारा जो आपने देखा होगा, हम लोग अपने बड़े 5 जबरदस्त हमारे प्रेजेंटर्स आ रहे हैं इस दफा, जो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। ब्रेकिंग द बाइस जो हमारी कीनोट स्पीकर है, शी इज अ फार्मर। मैं कभी किसी फार्मर से नहीं मिली यहाँ, यंग लड़की है वो। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हम लोगों को। हम लोगों ने बड़ा कम्पैक्ट सा रखा इस दफा, क्योंकि पिछला तो 10th था तो काफी लंबा था, इस दफा बहुत। और शशि जी वन ऑफ द हमारी गेस्ट स्पीकर होंगी। शशि जी रेडी? So it is only for women? नहीं, it's for everyone. Everyone can participate, yeah. That's good, yeah. जी, everyone can come. But sometimes it's only for women like this, yeah. So that's good, yeah. It's for everyone. और अगर आपने अपनी किसी को इनवाइट करना है, जैसे अनीता वगैरह को, आप कर सकते हैं, आप उन्हें लिंक भेज दीजिए। जी हाँ, बस हमें पता हो कि आपने किसके साथ ये किसको इनवाइट किया है। ओके जी हाँ, तो 100 से ज्यादा लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। ओह वाओ, जी हाँ, नाइस। नहीं, I will register myself today, yeah. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो इट्स 6:15 होने वाले हैं। आपसे एक आखिरी गाना सुनते हैं, फिर इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द जर्नी। Yeah, thank you, yeah. So ये लास्ट सॉन्ग है रहा है, ठीक है। लास्ट सॉन्ग तो एक्चुअली आई वांट टू लीव, या मेरा भी टाइम हो गया उठने का। चलो इसके बाद ये, लेकिन मैं सुन के जाऊंगा ना। ओके, चलो फिर थोनू एक हो सुना देने हैं। फिर पुरानी गजल है, थोड़े ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ दो पैरे सुनावांगे, उस तो बाद फिर बंद कर दिन्ने हैं। कितनी गजल सुना रहे हो? रंजोगम। हाँ, क्या बात है। उस तो बाद फिर ड्रिंक मारांगे दो। हाँ, दैट इज नॉट अलाउड। नहीं, चाह मेरा मतलब है चाह दे कप। हम तो लेके आ गए हैं इधर। ओह अच्छा, लेके ही आ गए। अच्छा अच्छा। तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें
कैसे सताती है कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये लास्ट वाला है जी। वाह, बहुत अच्छा। ये थोड़ा फ्री कर देने ਅਸੀਂ। ओ वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया, पाया वो था, दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी शय अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। Thank you जी, thank you. Beautiful. Vidya, you are still here? Oh boy. मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लाइक आप बड़ी हंसती खेलती चहकती पर्सनैलिटी है, और ये इतना इंटेंस गाना इतने फील के साथ, लाइक अनबिलीवेबल, लाइक मेस्मराइजिंग सा था, लाइक हम कहीं और ही जहाँ में पहुंच गए थे। मैंने कभी सुना नहीं था ये गाना, और कितना ब्यूटीफुली रिटन एंड वेरी ब्यूटीफुली sang। ये गाना मैंने कई बार सुना भी है और गाया भी है। मैंने पहली बार सुना, बहुत सुंदर है। और इसका मैं काफी रियाज भी करता हूँ क्योंकि काफी सिंपल है। Very beautiful, very soulfully sang. See, that's how you sing it, with the feel, with your emotions. It's The the way they movie. sing. It's the movie Shagun. Each sentence has its emotions, and you have to bring it in your singing. So true, so true. Yeah. एक एक वर्ड को आपने इतने अच्छे तरीके से लिखा, और मेरे अंदर से निकल रहा था, जिसके पास है फालतू अपनी नानी मुझे दे दो। यही होता है सिंगिंग में, कोई और इमोशन निकलते हैं। हर कितने भी इंटेंसिटी से गाओ, गाना फनी हो जाता है गाने के बाद में। आई एम वेरी टैलेंटेड इन अ डिफरेंट वे कि मैं कितना भी सीरियस गाना गाऊं, वो गाने के बाद फनी हो जाता है। ये आपने बिल्कुल हर पाल वाली बात करी है। ਅੱਜ ਨਾ ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਈਸ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਡੋਲ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ। भाई देखिए, मॉल्टन वुमेन काउंसिल यही कहते हैं ना, सबको अपनी परेशानी मुझे दे दो। तो जब मैका बनेगा तो हम यही कहेंगे ना, अपनी नानी हमें दे दो। नानी मुझे। Yeah, that's it. Yeah. हम तो उस तरह सोचते हैं ना। Well done. Yeah. और नाना हो तो मेरी फ्रेंड नानी को अपने घर में रहने दो, नानी ले लो। मेकिंग द बायस, अपनी नानी मुझे दे दो, नाना जी का क्या। मेरी ना फ्रेंड है एक, तो उसका हस्बैंड बता रहा था कि जब शादी हुई ना उनकी, तो उसकी वाइफ ने ये गाना गाया, ओह अच्छा, अपनी परेशानी दे दो। कहते मैं बड़ा खुश हुई, मैंने उसको बोला मेरे को तो कोई परेशानी है ही नहीं। कहते अब मैं जो आ गई हूँ एडवांस में बोल रही हूँ।
सही बात है, उसको बोलो कि ये पूछने वाली बात थोड़ा है कि परेशानी नहीं है मेरे को कोई। शशि जी के जोक्स भी ना 100 सुनार की 1 लोहार की। तो शशि जी इसी तरह कोई दुआ मांग रही थी कि मेरे हस्बैंड को हर तरह की बीमारी से, परेशानी से, बलाओं से, सब चीजों से बचा। मैं कहती हाय हाय मैनू ना चुक ले। तो दर्शन जी यहाँ बहुत अच्छा हमारी सुरजीत जी ने लिखा है, गुड टू हियर द लाइफ जर्नी बाय अ मैन। दैट्स सो ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपका ये सफर। आपने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया कि नजरों के आगे सारी वो जगह, सारी चीजें आती गई कि हमें लगा कि अच्छा अब आपने वो जो होते ना कार का पाना, वो खड़कना शुरू हो गया। वो आपने जब कहा कि अच्छा मैंने वहां काम किया, स्प्रेडर था मैं, तो मैं सोचूं क्या शीट स्प्रेड हो रही थी वहां, आप कटर थे। आपने जब कहा कि मैंने गारमेंट्स के उसमें काम किया, वो सारी चीजें आपने बहुत प्यारे तरीके से बताई। थैंक यू सो मच। जब माइंड का बोला ना तो मैं वो काला पत्थर वाली मूवी जो थी ना, तो मेरे दिमाग में वो फ्लैश जो उनके वो हेड पे लगी होती थी, तो वो माइंड में जाते हैं, तो मेरे को ना वो पाथ नजर आ रहा था कि वैसे ऐसे बंदा कैसे जाता है अंदर। मुझे तो वो सलमान खान की मूवी याद आ रही थी, भारत जो उसकी लास्ट मूवी थी ना, उसमें में वो माइंड में काम करता है। उसमें भी उसने बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया है, सेम लाइक यू, कि वियतनाम में, जर्मनी में, आप जहां जहां गए आपके साथ वो हम भी आए, कभी ट्रेन में, कभी वो जहाज में, 2 महीने हम भी होटल में रुके। हम भी ऑटोमोबाइल कंपनी में गए, हम भी माइनिंग में थे, तो सब कुछ आंखों के सामने आ रहा था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आपके पास बहुत डाइवर्स जर्नी रही है आपकी। हमारा तो ये था कि 25 साल इधर पैदा हुए, 25 साल तक उधर ही हुए, फिर शादी हो गई, फिर कनाडा आए, अभी 10-15 साल इधर ही है, फिर यहाँ आ गए, चलो बच्चे हो गए, 1 2 3। आपके तो इतने सारे स्टेप्स है, इतने, और करियर, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और आपके पैशनेट सिंगिंग लाइफ में भी, तो इट्स ब्यूटीफुल। अब ये नहीं लग रहा उनकी लाइफ जर्नी को सुन के कि हमें भी अपने जो वो वो स्टेप्स याद आने शुरू होंगे कि कैसे कैसे हम भी तो निकले तो स्टेप्स में ही हैं, लेकिन वो हम भूल चुके हैं कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, बीच में तय लगा के रख दिया, उसको निकालना पड़ेगा। और किससे भी हर इसमें से ना उनकी याद है उनको, कोई वियतनामीज में वहां पे वो लेडी पंजाबी खाना बनाती थी, तो छोटे छोटे हर आपके उस टाइम फ्रेम में आपको कोई मजेदार किस्से भी याद है। दैट्स ब्यूटीफुल। और मुझे इस चीज की भी खुशी हो रही है कि हनिया ने जब हनिया ट्रेवल्स किया तो उसके बाद मुत्ता जी ने कहा कि मैंने भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, जर्नी शेयर करनी है ये वाली, याद है? तो फिर मैंने कहा था फिर मैंने कहा था कि फिर इसका नाम रखते हैं हम जिंदगी का सफर। Yeah, that was well thought. Yeah, बहुत अच्छा। स्पेशली म्यूजिक का भी तड़का है ना बीच में, खाली स्टोरीज नहीं है। तो ठीक है जनाब, इजाजत। All right. Yeah, thanks a lot. Yeah, you stayed for the whole session. That was amazing. Yeah. Bye bye. Very nice program. Yeah, lots of participants. Thank you, Mutta ji. Yeah, Shashi ji ने भी जाते जाते एंड में कॉमेडी का तड़का लगा दिया, एक जोक मार ही दिया। हाँ, अपनी अपनी स्टाइलें देखे। हाँ, कहाँ लगा क्या बातों में याद आ जाता है। हाँ, जो वैसे मुझे कोई कहीं सुना तो बड़ा मुश्किल है, पर बातों में ना याद आ जाता है। Right. Yeah. That's nice. Okay, ठीक है। Okay. Bye bye. Thank you all for participating and listening to my Zindagi ka Saffar. So I'll tell to my Amrit and Rajinder about this session, and hopefully they can watch it on the recording version on Facebook. जी हमारे फेसबुक पे है, तो आप उनसे शेयर कर लीजिएगा। Okay, yeah. चलिए, ओके जी। Okay, thanks a lot. Bye. Okay, everybody. Bye. Yeah.